and demonstrating to the youth of this country how elections are being won. नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process. So, first of all, this is not the 8th bomb. 8th bomb is coming. This is another milestone. उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट नहीं किया। नमस्कार, एफएम न्यूज का खास शो विश्लेषण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। आज सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ में वो लगातार ये भी बोलते रहे कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, असली बम तो अभी आने वाला है। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन उन्होंने आज जो भी ट्रेलर दिखाया है वो भी कम नहीं माना जा रहा है। बहुत बड़ी सियासी बहस को जन्म दिया है। कांग्रेस युवराज के इन तमाम आरोपों ने वोटर लिस्ट से नाम काटने का खेल, वो भी टारगेटेड तरीके से, बहुत ज्यादा सनसनीखेज आरोप हैं कांग्रेस के। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या राहुल के आरोप तथ्यात्मक हैं? क्या उनके पास सच्चे सबूत हैं या ये सिर्फ चुनाव से पहले का हल्ला है? आज हम इन्हीं तथ्यों का, राहुल के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे। क्या कहते हैं आंकड़े, चुनाव आयोग का जवाब क्या है, इन तमाम आरोपों से देश की मौजूदा सियासत पर क्या असर हो सकता है, एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि राहुल गांधी की ओर से लगातार ये जो एलिगेशन लग रहे हैं ये जमीनी हैं भी या फिर हवा हवाई हैं। First of all, this is not the 8th bomb. 8th bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being won. Anand is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force
hijacked the process and deleted the vote. Let's come to why I'm making such a direct accusation about this gentleman, Janish Kumar. There is an ongoing investigation on this matter in Karnataka. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get notified. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done. And we are absolutely convinced where this is going to lead. बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। As luck would have it, got caught. What does the operation look like? In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही राहुल ने यह साफ कहा था कि मैं देश और संविधान से प्यार करता हूं, इसलिए यह सबूत पेश कर रहा हूं। उनका सबसे बड़ा एलिगेशन यह है कि पूरे देश में वोटर लिस्ट से लाखों नाम लगातार काटे जा रहे हैं, खासकर ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ये नाम काटना रैंडम नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड है। जहां कांग्रेस या विपक्ष लगातार जहां पर मजबूत वोट हैं, वहां पर बूथ हैं, जो वहां पर ये खेल लगातार बहुत व्यापक तौर पर हो रहा है, ये राहुल गांधी का कहना है। राहुल ने उदाहरण दिया कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र का। राहुल गांधी का यह दावा है कि यहां पर 6018 नाम डिलीट करने की कोशिश हुई। एक बीएलओ ने चांस से यह नोटिस किया था कि उसके अंकल का नाम पूरी तरह से गायब है। महाराष्ट्र का राजूरा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 12,000 फर्जी नाम जोड़े गए, ऐसा दावा है राहुल गांधी का। लेकिन आज उनका पूरा फोकस डिलीशन पर ही दिखा। राहुल ने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, उन्होंने दावा किया कि फॉर्म्स के टाइम स्टैम्प्स जहां पर 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे गए। एक शख्स था सूर्यकांत, जिसने 14 मिनट में 12 फॉर्म भर दिए।
मोबाइल नंबर का जब सवाल खड़ा हुआ, दूसरे राज्यों जैसे कि एक कर्नाटक वाले फॉर्म में यूपी वाले का नंबर था, ऐसा दावा है राहुल गांधी का। राहुल ने मंच पर 2 लोगों को बुलाया, एक बुजुर्ग महिला थी गोडाबाई जिनके नाम से 12 वोट काटे गए थे, और एक युवक था जिसका फोन इस पूरे प्रक्रम के दौरान इस्तेमाल हुआ। दोनों ने यह बोला कि हमें इस मामले का पता ही नहीं है। राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर भी बड़ा निशाना साधा। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 लेटर भेजे, आईपी एड्रेस, ओटीपी की डिटेल्स भी मांगी, लेकिन ईसी ने एक भी जवाब नहीं दिया। ईसी वोट चोरों को बचाने की कोशिश में है, ऐसा आरोप लगाया राहुल गांधी ने। अंत में कांग्रेस युवराज ने एक बड़ी चेतावनी भी दे दी कि 1 हफ्ते के अंदर यह डेटा जारी कर दो, वरना हम हाईजैक्ड सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख देंगे। अब दोस्तों, सुनने में तो यह काफी ज्यादा भयावह लगता है देश के लोकतंत्र के लिहाज से, लेकिन क्या यह सबूत मजबूत है राहुल गांधी के? इस सवाल का जवाब ही हम तथ्यों के साथ तलाशेंगे। राहुल के आरोपों को हम चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण करेंगे। पहले अलंद को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसको समझते हैं। राहुल का दावा है कि 6018 नाम डिलीट हुए। यह आंकड़ा कांग्रेस की जांच से आया। आरटीआई और लोकल डेटा से साभार लेते हुए कर्नाटक सीईओ ने इसका नोटिस भी लिया है और सीआईडी ने एफआईआर भी दर्ज की है। राहुल ने एक वीडियो दिखाया, फॉर्म्स के टाइम जो स्टैम्प्स हैं, जहां सुबह 4:07 पर 36 सेकंड में यह फॉर्म भरा गया। यह मैनुअल नहीं था, सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटेड लगता है। एक ही नंबर से 12 फॉर्म भरे गए। यह भी एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड मालूम पड़ता है। अब इसका अगर फैक्ट चेक किया जाए तो यह आरोप बिल्कुल सही मालूम पड़ता है। कर्नाटक पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। न्यूज रिपोर्ट्स अलग अलग जो सामने आई उससे यह कंफर्म था कि सीआईडी ने ईसी को 18 लेटर भेजे थे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि मोबाइल ओटीपी असली लोगों के नंबर से था, लेकिन आईडी जो थी वो पूरी तरह से फर्जी लगी हुई थी। यह सामने आया। राहुल गांधी ने कई एविडेंस भी पेश करने की कोशिश की। यह आरोप भी सही लगता है क्योंकि इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स लगातार ये शेयर करने लगे कि उनके नंबर वाकई में इस्तेमाल हुए थे, वो भी उनकी बिना जानकारी के। महाराष्ट्र में 40,000 फेक एड्रेस वाले वोटर्स पहले के प्रेजेंटेशन से मैच करते हैं। लेकिन ये डिलीशन का पैटर्न क्या है? राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस वाले 100 बूथ पर 70% नाम कटे हुए थे। आरटीआई के डेटा से ये आंकड़ा सामने आया, तो क्या मीडिया हाउस ने लेकर, अलग अलग मीडिया हाउस ने इसको लेकर रिपोर्ट छापी? क्या इससे जुड़े तथ्य पेश किए गए? जब हमने इसको खंगाला तो ये भी तथ्य सही ही साबित हुआ। और एक और बड़ा आरोप राहुल गांधी का आज जो उन्होंने लगाया, टारगेटिंग से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी बोले कि ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक ही टारगेट किए गए। इस पूरे गड़बड़ झाले में फैक्ट चेक ये कहता है कि एसआईआर प्रोसेस में नाम कटना तो नॉर्मल है, डेड शिफ्टेड हो, डुप्लीकेट हो, लेकिन बल्क डिलीशन ये संभव नहीं दिखता। 2024 लोकसभा के बाद 2 करोड़ नाम या तो ऐड हुए या तो डिलीट हुए, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। उनका पॉइंट यह भी है कि ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादा हुआ जो विपक्षियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे गलत इंटरप्रिटेशन बता दिया है। ईसी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि यह पूरी तरह से उनका गलत आकलन है। एक्स पर अब इस समय हैशटैग वोट चोरी ट्रेंडिंग है। हजारों स्टोरी शेयर हो रही हैं, लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अब तीसरा आरोप राहुल गांधी का ईसी की साइलेंस से जुड़ा हुआ है। 18 लेटर
अनआंसर्ड हैं राहुल गांधी के, जो उन्होंने लगातार लिखे हैं। यह बात तो पूरी तरह से कंफर्म है। राहुल गांधी लगातार ये बोल रहे हैं कि इसी को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलने लगा है। ये बहुत बड़ा दावा भी है देश की सियासत के लिहाज से, लेकिन राहुल गांधी को यह जरूर चाहिए कि अपने हर आरोप का तथ्यों के साथ सबूत भी पेश करें। केवल प्रेजेंटेशन देकर खाना पूर्ति ना करें। बहरहाल कुल मिलाकर राहुल के 60 से 70% दावे डेटा बेस्ड हैं, आरटीआई, पुलिस एफआईआर, टाइम स्टैम्प्स के आधार पर हैं, लेकिन इन सभी आरोपों की पुष्टि राहुल गांधी खुद भी नहीं कर सकते और उन्हें पुष्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में टेस्ट होने के बाद ही कुछ कहना राहुल गांधी का इस तरह का दावा करना ठीक है। एक नजर में सुना जाए तो आरोप सटीक तो लगते हैं, लेकिन जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंटरप्रिटेशन है, इस पर बड़ी बहस है। अब इस पूरे वाकये के दूसरे पहलू की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं। राहुल गांधी के इन बेहद संगीन आरोपों का चुनाव आयोग ने तुरंत रिस्पॉन्स भी दिया। बकौल इलेक्शन कमीशन, ये आरोप पूरी तरह से गुमराह करने वाले हैं और आधारहीन हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार ने यह कहा आज कि वोटर लिस्ट रेगुलर अपडेट होती है, डिलीशन नॉर्मल प्रोसेस है, कोई सिस्टमैटिक फ्रॉड नहीं है। ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन इसे निराधार आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग अब लगातार राहुल गांधी को यह चेतावनी देने लगा है कि या तो भाई सबूत दे दो, एफिडेविट दो, वरना सरेआम जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी तर्ज पर माफी भी मांगो राहुल गांधी, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच जारी तू मैं से जुड़ा फैक्ट चेक यह कहता है कि ईसी ने कभी आईपी या ओटीपी का डेटा पब्लिक ही नहीं किया था, अपनी प्राइवेसी का हवाला देते हुए। लेकिन सीआईडी के लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, जो चुनाव आयोग को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा तो जरूर करता है। उधर इन आरोपों को लेकर बीजेपी लगातार यह काउंटर कर रही है कि राहुल गांधी हार का रोना रो रहे हैं और इसलिए चुनाव करीब है बिहार के, इसलिए यह हवाबाजी कर रहे हैं। अगर वाकई में सबूत है तो भाई कोर्ट जाओ, ऐसा बीजेपी का कहना है। उधर पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी हैं, वो बोले हैं कि ईसी को इस मामले की जांच करानी चाहिए, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता। तो दोस्तों, इस तथ्य से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी के पास सबूत मजबूत तो हैं, लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि यह पूरा हमारा जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से पारदर्शी है। आप कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह के फर्जी आरोप ना लगाएं, नहीं तो हम कार्रवाई करने की तैयारी में, ऐसा इलेक्शन कमीशन का दावा है। क्या राहुल गांधी के आरोपों की जमीनी हकीकत कुछ है, इसका आप विश्लेषण करते हैं। पहला आरोप उनका है डिलीशन नंबर से जुड़ा हुआ, 60.18 अलंद का यह डेटा है, आरटीआई से कंफर्म भी हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि यह सिर्फ एसआईआर का ही हिस्सा है। यह प्रोसेस भी अब वैलिड ही मालूम पड़ता है, लेकिन 36 सेकंड की जो स्पीड की बात है वो आरोप थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के अगले बड़े आरोप की, जिसमें उन्होंने कहा कि खास कम्युनिटी और कास्ट को ही टारगेट किया गया। इस पूरे गड़बड़ झाले में जो राहुल का डेटा है वो शो करता है कि विपक्षी बूथ्स पर ज्यादा टारगेट किया गया। उधर बीजेपी ने यह कहा कि यह पूरी तरह से कोरी साजिश है राहुल गांधी की, वोट बैंक अपने पाले में करने के लिए। फिलहाल हकीकत क्या है वो कोर्ट ही डिसाइड कर पाएगा, यानी कि राहुल गांधी के हर आरोप का जो हम बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं उसमें यह पाया गया है कि उनके आरोप 100% तो सटीक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 70% आरोप जो हैं वो तथ्यों पर आधारित जरूर हैं। लेकिन उन्हें ऐसे दावे करने की बजाय आरोप लगाना चाहिए, कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए।
इस तरह का दावा तमाम अलग अलग सियासी जानकार कर रहे हैं। और एक और बड़ा सवाल उठना यह भी लाजमी है कि अगर डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया चुनाव आयोग की ओर से, इसे छिपाया गया, तो शक होना लाजमी तौर पर होगा। अब राहुल गांधी की ओर से लगातार लगाए जा रहे ये आरोप कितने असरकारी होंगे, किस हद तक इनका असर हो सकता है, यह भी आपको जरूर जानना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले पूरे सूबे में एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। अगर किसी भी आरोप को वो बिहार चुनाव से पहले साबित कर ले गए तो उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट भी बन सकता है। प्रियंका गांधी लगातार इस पूरे मुद्दे को संगठित साजिश करार दे रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 लाख से ज्यादा इसको लेकर अब तक पोस्ट लिखे जा चुके हैं। बहरहाल विश्लेषण की इस खास पेशकश में हमने आपको एकदम निष्पक्ष तरीके से और आसान भाषा में यह समझाने की कोशिश की कि राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोपों का तथ्य क्या है। अब चलते चलते आपको छोड़कर जाते हैं आज राहुल गांधी की ओर से लगाए गए उन तमाम गंभीर आरोपों पर जो देश भर की सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा कर रहे हैं। इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। Anand is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018. But somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being won. नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन